Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Today was another day of consolidation into the markets. पिछले दिन भी कंसोलिडेशन देखने को मिला था यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में और आज भी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिला. इनफैक्ट टुडे मार्केट्स ट्राइड टू टच 15,000 लेवल वंस अगेन. सो माय क्वेश्चन इज, आर bears waiting for some reason to dominate the market again? Now, if you look at the global cues ahead of the US Federal Reserve's meeting, अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आता है तो हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सा बेटर रिएक्ट करें, बट अगर कोई भी चेंज आता है तो हो सकता है मार्केट्स में एक फॉल देखने को मिले यूएस मार्केट्स में. और अगर ऐसा होता है तो हमारे मार्केट्स यूएस मार्केट्स के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट जरूर करेंगे. जनरली रिफ्लेक्ट करते हैं इंडियन मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स को, एंड इन दैट केस 14,900 and 14,800 is going to act as a crucial support zone for the Nifty 50 index. ऊपर साइड अगर हम देखेंगे तो 15,100 is again a strong resistance as of now. We saw that today that the index tried to move up multiple times but could not and faced super strong resistance on the upside and started to fall down. Touched 15,000 15,010 level at least once in the day, and the index closed with slight bearishness for the day. That's what we can see. Now PSU bank index, if I'm not wrong, yes, 3 PSU banks jumped up with unconfirmed reports saying that saying the reports of privatization will include 3 banks, that is Central Bank, Bank of India and IOB. So this was one news from the PSU bank index that made these 3 banks jump up with the news of privatization. And in general अगर हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो काफी कंसोलिडेट किया है बैंक निफ्टी इंडेक्स ने दिन भर. देयर वाज नो ग्रेट न्यूज फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर एज ऑफ नाउ, एंड yesterday we saw a good rise in Tata Motors and Mahindra, but today after Tata Motors results came out, and I believe Tata Motors has posted a net loss, and that is one reason that Tata Motors sharply fell, and even Mahindra did not move up to our trading levels that we discussed last night for the Red Circle members. So stay tuned till the end of the video, my friend, because we are going to discuss and analyze everything that happened into the markets today and what are the possibilities for tomorrow's trading session. Tomorrow is the day of expiry, and we have to trade cautiously in tomorrow's trading session so that we can make good money out there. And stay tuned till the end because I'm going to explain what kind of trades did we take personally in the market today and what was the result. उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था, हमारा एक बार स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ, सेकंड टाइम हमने ट्रेड क्यों लिया, और इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो माय फ्रेंड, बिकॉज यू आर गोइंग टू लव एवरी सिंगल थिंग दैट वी आर अबाउट टू टेल यू, एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट द मार्केट्स from every video that we bring to you on daily basis. So this is from Utkarsh Bhargav. You're watching Roaring Bulls, the stock market show. Okay, so let's move ahead and discuss about the post-market block first. We have discussed several important things here. Yesterday's high was tested many times today, and bearishness was clearly seen into the markets after opening at 15,066 at 15,066. Immediately index went up to test yesterday's high, but rejection was there and the index mostly consolidated all day long in a small 83 point range, and the index closed down 78 points or 0.52% down. Bank Nifty also opened with a gap down just like Nifty, and Bank Nifty also tried to move up and cross 34,000 levels but could not cross that level, and वहां से जो bearishness दिखी तो Bank Nifty index जाके close हुआ है 237 points down. Mostly Bank Nifty index भी दिन भर consolidate करता रहा, but today two important stocks that saved Nifty from falling a lot were SBI and Reliance, and both of them helped Nifty to sustain the level of 15,000 throughout the day. So that is one important thing to look here. Now if you will see, the Indian rupee has stabilized a bit, and that has helped the pharma sector to stay intact for the day. And the global markets, if you will talk about the global markets, हमने अभी just discuss किया कि global markets are waiting for the results of US Federal Reserve meeting, and they're expected to keep the interest rate unchanged. So that is one thing that we have to watch out for. Now if we have to closely monitor the global cues, because if the global cues turn negative, then 14,800 might be tested again. I'm not saying that it will come, but I think
14,900 is a great support, but if it is broken, 14,800 can be tested again. And as I said, Mahindra and Mahindra along with Tata Motors were up yesterday, but Tata Motors reported a consolidated net loss of 7,585 crores for quarter 4, and the stock closed down 5.4% down its near opening level. So this was the result with Tata Motors, and in general the auto sector was not very much up for the day. So 33,500 and 33,600 is going to be a good support in the Bank Nifty index, but this support can be easily taken out अगर bearishness रहती है तो, और 33,000 टेस्ट होता हुआ आपको दिख सकता है. आज की ट्रेडिंग प्रोफाइल की हम बात कर लेते हैं. We had one stop loss for the day and one good profit for the day. In general, we closed our day almost at no profit, no loss. Basically, we closed just 200 with a profit of just 275 rupees per lot. So that was almost a negligible profit. I have already shared with you all on Telegram also my personal trade as well. I did not trade at all actually today. बहुत ही छोटा सा ट्रेड लिया था, सिंगल लॉट ट्रेड लिया था मैंने आज. I was not at all confident on the markets today. I was just playing around to see with minimum losses क्या आज किया जा सकता है, because there was a huge expectation of consolidation after opening as we saw that. So that is how our day looked like. Let me quickly just go on to the advance to decline ratio for the day, and yes, we can see that there were 21 advances for the day and 29 declines, so it was not a very great advance to decline ratio. Let's quickly look at the top gainers and the losers for the day as well. So the gaining sector, we can see that I just told you that the INR has strengthened somewhat and stabilized somewhat. So the Nifty Pharma is it performed much better for the day. It was up by 1.2%, and Nifty Realty was up by 2.2%. Nifty Media was up by 2%. So these Nifty Small Cap was also up by 0.7%. So that were the major sectors that were up for the day. And if you look at the losers, so mainly the losers were from the finance and the private bank along with auto sector. So yes, we can see that Nifty Finance, Metal, Private Bank, Auto and Nifty Bank were from the top losing sectors for the day. So now let's quickly go to the Nifty 50 index and talk about the charts at how the markets behaved for the day and what can be expected for tomorrow's trading session. Okay, so we can see that very clearly. मैंने आपके साथ मॉर्निंग में ही ये चार्ट भी शेयर कर दिया था, जनरल टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दिया था, और ये मैंने कहा था कि ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है. इसके अंदर एज एन ऑप्शन बायर मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा. 2 reasons. Reason number 1, that if you go on to trade with breakout principles कि भाई मेरा डे का हाई ब्रेकआउट हुआ है तो मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए, then you might face a reversal and then your stop loss might hit. उसके बाद आप ब्रेक डाउन पे अगर ट्रेड लेने जाएं तो you might again face a reversal and then your stop loss might hit. तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आज फॉल्स ब्रेकआउट्स और फॉल्स ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहे थे. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, टाइम डिके प्लेड अ सीरियस रोल टुडे सिंस एक्सपायरी इज टुमारो इटसेल्फ. तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं और आप किसी भी मोमेंट पे एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो टाइम डिके के कारण आपको वो मोमेंटम ही नहीं मिलेगा आपके ऑप्शन के अंदर जो कि आपको एक जनरल डे के अंदर मिल जाता. सो एज एन ऑप्शन बायर, क्योंकि ट्रेंडिंग डे होना जरूरी होता है ऑप्शन बायर के लिए, काइंड ऑफ अ ट्रेंडिंग डे अच्छा होता है ताकि आपको ज्यादा मोमेंटम कैप्चर करने को मिले. सो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर ऑल डे लॉन्ग फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स एज एन ऑप्शन बायर टुडे. कल के लिए हम लेवल्स की बात कर लेते हैं. देखिए, मैंने कल भी आपको ये मेंशन कर दिया था कि वी हैव टू गो बुलिश ओनली अबव दिस पर्टिकुलर लेवल. So 15,131 is a big resistance as of now. It was tested multiple times. This was yesterday's high as well. यहाँ पे देख रहे हैं कितनी बार टेस्ट हुआ है. So this is a big resistance. Point number 1. Point number 2. This is your resistance 2. This is 15,192. But there's a high possibility कि इंडेक्स यहाँ टेस्ट रेजिस्टेंस नहीं करेगा बल्कि सपोर्ट टेस्ट करेगा. So the first support that the index will test is this level that was today's low, and that is the level of 15,000. Support 1 is 15,000. अगर ये सपोर्ट टूटता है तो इंडेक्स आपको कहां जाता हुआ दिखेगा, इसको हम अभी समझ लेते हैं चार्ट्स के ऊपर. देखिए, अगर ये सपोर्ट जाता है, टूटता है, तो आपको सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा 14,960 पे और दूसरा सपोर्ट मिलेगा 14,925 पे. दीज आर सपोर्ट जोन्स. देखिए, इतना बड़ा गैप क्रिएट जो हुआ था कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग के साथ, वो गैप अभी फिल हुआ नहीं है. सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दिस गैप माइट गेट फिल्ड. तो अगर ऐसा होता है
तो यू कैन सी दीज लेवल्स बीइंग टेस्टेड इन निफ्टी 50 इंडेक्स। ये हो गए निफ्टी के लेवल्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या पॉसिबिलिटी है और हमने किस तरीके से ट्रेड लिया, ये हम अभी समझ लेते हैं, ठीक है। इतने सारे लेवल्स को आप देख के बिल्कुल ना घबराएं, ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मेरे चार्ट्स के ऊपर मार्क्ड हैं। देखिए आज के दिन में अगर हम बात करेंगे तो ये जो पूरा जोन था, बेसिकली ये पूरा जोन एक सपोर्ट जोन था। कहां से निकल के आया सपोर्ट जोन, इसको जरा सा पीछे करके देखते हैं हम। अगर आप देखेंगे कल इंडेक्स ने इस जोन को टेस्ट किया था, राइट। कल के ट्रेडिंग सेशन में 18 मई के ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया था। कौन सा लेवल को, 33,710 के लेवल को कल इंडेक्स ने टेस्ट किया था। नाउ today the index again went to test that particular level, plus it went down till 33,632. so this is an important support zone as of now. 33,600 is going to be an important support zone as of now. थोड़ा सा जूम इन वापस करते हैं, अभी देखते हैं कि हमने जो ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में उसके पीछे का क्या लॉजिक था और उसमें एक बार स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, दूसरी बार प्रॉफिट क्यों आया, ये दोनों चीजें हम समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर वो बड़ा क्लियर था, जो हमारा ट्रेड सेटअप था वो बड़ा क्लियर था कि 33,672 का लेवल जब ब्रेक डाउन होगा तो हमें हमारी एंट्री लेनी है और अप टिल द नेक्स्ट सपोर्ट जोन और एटलीस्ट अप टिल द 200 मूविंग एवरेज, यहां तक का इजीली हमारा टारगेट होना चाहिए था। 33,500 तक का हमारा इजी टारगेट होना चाहिए था, 100-150 पॉइंट्स के आसपास का। बट what happened, the index came down till 33,632 and reversed completely. ये देख रहे हैं आप, कंप्लीट यहां से रिवर्सल आ गया। so it did hit our stop loss and that is very much fine. our capital was protected क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं देते तो काफी बड़ा लॉस हो सकता था इस जगह पे। that is very much okay. then we were still waiting all day long कि इंडेक्स इस लेवल को कब ब्रेक करेगा, तभी हम बेरिश होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ही कर रहा था दिन भर, ऐसा कोई बहुत मेजर मूव किसी भी तरफ नहीं आया। फ्रॉम 33,000 let's get the levels clear, from 33,632 to 33,840 इस जोन के बीच में इंडेक्स ने दिन भर कंसोलिडेट ही किया है, कहीं भी कोई मेजर मूव नहीं दिया दिन भर। सो इट वाज अगेन नॉट अ वेरी ग्रेट डे एज एन ऑप्शन बायर इन बैंक निफ्टी इंडेक्स एज वेल। बट सेकंड ट्रेड हमने कब लिया, हमने सेकंड ट्रेड तब लिया जब 50 मूविंग एवरेज यहां पे ब्रेकआउट हुआ था। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस हमको ढूंढना रहता है, राइट। हम एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस के बारे में बात करते रहते हैं जहां से हमको मल्टीपल कंफर्मेशन मिलते हैं कि यस द इंडेक्स इज शोइंग सम मल्टीपल कंफर्मेशंस कि यहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। तो यहां पे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्यों है उसको समझने की कोशिश करेगा ताकि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग भी हो जाए। पॉइंट नंबर 1, सुबह सीपीआर से रिजेक्शन फेस कर चुका था इंडेक्स, ठीक है। यहां सीपीआर से रिजेक्शन फेस कर चुका था। इट वेंट एंड मेड अ लोअर हाई, ठीक है, एक लोअर हाई लग चुका है, यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं हमारा एक डेली टाइम आज के इंट्राडे के लेवल पे आज एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस यहां पे एक बन गया है, फिर से यहां पे लोअर हाई लगाया और इंडेक्स नीचे आया। इसके बाद वापस ऊपर गया, एक और लोअर हाई हमारा इंडेक्स ने इसको क्रॉस नहीं कर पाया। द इंडेक्स कुड नॉट रीच इवन दैट प्रीवियस हाई। इसका मतलब है कि इंडेक्स बेरिश तो है बट नीचे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है इस लेवल पे, ये हमको क्लियर था। अब हमारा टारगेट क्या था, इस लोअर हाई के बाद जब ये स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, इट इज नॉट एक्चुअली अ बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, इट इज काइंड ऑफ एन इनसाइड बार कैंडल इफ यू कैन सी। सो दैट शोड दैट देयर इज अ लॉस ऑफ बुलिश मोमेंटम। इस कैंडल में जो बुलिश मोमेंटम था दैट इज लूजिंग अप। तो ये लॉस ऑफ बुलिश मोमेंटम दिखा। पॉइंट नंबर 1 हमारा एक कंफर्मेशन ये था कि ये एक इनसाइड बार सॉर्ट ऑफ कैंडल हमको दिख रही है। सेकंड कंफर्मेशन हमको ये था कि ये 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर लिया है। सो 50 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हुआ है तो चांसेस क्या रहते हैं कि इंडेक्स कोई भी स्टॉक या इंडेक्स 50 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक कर रहा है तो चांसेस रहते हैं कि 200 मूविंग एवरेज तक टच करके आए। बट वी वर नॉट वेटिंग फॉर 200 मूविंग एवरेज, वी वर जस्ट वेटिंग फॉर आवर सपोर्ट जोन। सो आवर सपोर्ट वाज अवेलेबल एट 33,612 क्योंकि हम इसको मल्टीपल टाइम्स सुबह से देख चुके हैं, टेस्ट हो चुका है, यहां पे मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है। सो व्हाट वी डिड वाज वी प्लान्ड अ सिंपल एंट्री। हमने यहां पे एंट्री प्लान करी इसके ब्रेकडाउन पे, सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा, जस्ट 10 पॉइंट्स अबव, और हमने स्ट्रेट अवे अपना टारगेट रखा। पहला टारगेट रखा ये लेवल जिसके लिए हमने 35 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट रखा था, और सेकंड टारगेट हमने रखा ये लेवल। एक्चुअली सेकंड टारगेट से थोड़ा पहले ही इंडेक्स रिवर्स कर गया, बट दैट इज वेरी मच फाइन। हमने 490 के आसपास जो हमारा लेवल था ऑप्शन का लेवल, वहां पे बुक कर लिया था और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। सो दैट इज वेरी मच ओके। कैसे हमने पहली बार स्टॉप लॉस हिट किया ये भी हमने देख लिया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि क्यों स्टॉप लॉस हिट होता है। लॉजिक के साथ ट्रेड करने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है एंड दैट इज वेरी मच ओके। लर्न टू गिव योर स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू स्टे इनटू द मार्केट्स फॉर लॉन्ग एंड मेक प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट्स, ओके।
देखिए, हमें फायर फाइटिंग करनी आनी चाहिए। अगर यहां पे एक बार आग लग चुकी थी तो हम दिन भर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। ये नहीं कि यहां पे आग लग गई तो वापस ट्रेड ले लो, फिर से ट्रेड ले लो, फिर से ट्रेड ले लो, बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठते। हम दिन भर सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। हमें यहां जाके एक क्लियर कट अपॉर्चुनिटी दिखी तो हमने ट्रेड सेटअप किया, और उस ट्रेड सेटअप में हमने फायर फाइट किया और अपने पूरे बाकी बचे हुए जो भी लॉसेस थे सुबह के उनको कंट्रोल करके एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस तक लिया, एंड वी क्लोज द डे इन स्लाइट पॉजिटिविटी। ओके, सो दैट इज वेरी मच फाइन। ओके, नाउ कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं। कल अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इज अवेलेबल ऑन द अपसाइड। आज भी मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन आया है, सो वी कैन सी दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट सबसे पहले तो दिस पर्टिकुलर लेवल दैट इज 33,850, इसको आप मार्क कर लीजिए। 33,850 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 एंड योर सेकंड रेजिस्टेंस विल कम एट 33,972, दिस इज योर R2। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपको मेजर रेजिस्टेंस देखने मिलेगा R3 दैट इज 34,140, जो कि आपका कल का हाई था। ओके, सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला छोटा सा माइनर सा सपोर्ट आपको 33,632 पे मिल जाएगा, दिस इज सपोर्ट 1। मेजर सपोर्ट अगर आप देखने जाएंगे तो वो आपको सीधे यहां मिलेगा इस जोन में। दिस जोन इज 33,419 टू 33,500। ठीक है, ये आपका मेजर सपोर्ट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देख लिए हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए भी। आई होप आपको ये सारे लेवल्स क्लियर हो गए होंगे एंड आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा ट्रेड सेटअप बना सकें। और मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास नहीं अटेंड करी है तो वेबसाइट पे जाके जरूर अटेंड करें, सो दैट यू कैन गेट मच मोर क्लैरिटी अबाउट हाउ टू एक्चुअली फाइंड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, टू बी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम बोल लेते हैं, जहां पे से आप स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग का चांसेस देख सकते हैं। वहां पे आपको ईजी हो जाता है अपना ट्रेड सेटअप करना। ओके, सो आई होप टू सी यू ऑल ऑन रेड सर्कल एज वेल। द चार्जेस फॉर रेड सर्कल आर जस्ट 999. If you want to become a red circle member, you can learn about all the benefits from the link in the description below. And I hope you all are doing well and you are safe from COVID. I hope to see you tomorrow, and more power to you, my friends. Just keep learning and you will never stop earning. So this is Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.